नीट पीजी 2026 के एग्जाम पैटर्न में जो भी चेंज एनबीईएमएस ने किया है, खुद एनबीई के प्रेसिडेंट ने उसे बताया है। ठीक है, इस वीडियो में आप देखेंगे आगे वो पूरी वीडियो जिसमें एनबीई के प्रेसिडेंट बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने 200 से 180 क्वेश्चंस किए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है उनको टाइम कम पड़ रहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ये बताया है। आप इस वीडियो में देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा लास्ट में जिससे आप 15-20 दिन के अंदर ही अपना स्कोर बहुत बूस्ट कर सकते हैं नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये देखिए वीडियो एनबीई के प्रेसिडेंट की। This time some changes has been done in NEET PG also. So what are those changes? And during the examinations, students they suffer from anxiety. So what message would you like to give? Yeah, namaste. Myself, Dr. Abhijat Sheth, President of National Board of Examination in Medical Sciences and Chairman of National Medical Commission. On behalf of these boards and behalf of the Ministry, I must assure to the students that they should stay away from the rumors. They should stay away from the agents and consultants. As I assure the whole student community that exam will be taken in a very safe, secure and transparent manner. And since it is a computer-based examination, a lot of objective tools are there, and it is very unlikely that any problem should happen with the conduct of the examination. So that I assure to all students, and my best wishes to all students for this forthcoming NEET PG examination on 30th of August on behalf of the National Board of Examination of Medical Sciences, NMC and Ministry of Health and Family Welfare. So this time the time has been reduced. How this time can be utilized by the students? So it will be a great benefit for the students because gradually NEET PG exam is including more problem-oriented, problem-solving and clinically oriented questions, which are lengthy questions at times, and that requires more time. And our post-examination audit for last 2 years has shown that students are struggling to cope up with the time given to solve these questions during examination. Hence, the examination committee make this decision that will reduce the number of questions from 200 to 180 without affecting the overall exam exam quality or exam conduct, and it will be better for the students because they will get a more time for their examination to complete. So this particular exam is almost of 3.5 hours, right? So how they can utilize this time? No. Because the question has been reduced, the questions are lengthy also, but the duration is same. So these few minutes, how they can utilize? No, because at least the examination committee's view was that by reducing the 20 questions less, the students will get at least a half an hour more to solve these 180 questions. So that is the purpose of reducing the overall duration, overall number of questions of examination, or rather than increasing the duration of exam from 3.5 hours to more. The exam committee thought that it will be better if they are given the less questions and the same time, so that time can be effectively utilized to complete their examination questions and paper. 60 डेज बच गए हैं आपके पास, आप उनमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें? अभी भी काफी लोगों का जीटी का स्कोर जो है 120 या 130 करेक्ट तक ही जा रहा है, या कईयों का उनसे भी कम जा रहा है। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है 600 अबव मार्क्स भी ला सकते हैं। 600 अबव मार्क्स लाते ही आपका 3000 रैंक आ जाएगा और आप कोई भी सीट, अच्छी सीट आपको, क्लिनिकल सीट आपको मिल जाएगी। लेकिन जो ये गैप है 120 टू 130 करेक्ट टू 160 करेक्ट, ये कैसे आप पार करेंगे? ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया था लास्ट ईयर, मेरे भी इतने ही करेक्ट होते थे। ठीक है, लेकिन जब मैंने क्या किया, ग्रैंड टेस्ट रिव्यू करना शुरू किया, जो भी मैं ग्रैंड टेस्ट देता था उनके की पॉइंट्स एक रजिस्टर में लिख लेता था। ऐसे करते करते मैंने 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स, 115 ग्रैंड टेस्ट मैरो के उनके की पॉइंट्स निकाले थे और उन्हीं को लास्ट के 2-3 मंथ्स में रिवाइज करता रहता था। तो मेरा स्कोर जो है मैरो के ग्रैंड टेस्ट में 750 आया और फर्स्ट रैंक था मैरो के ग्रैंड टेस्ट में। मैरो वालों का कॉल भी आया था मेरे पास, उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया जिसमें मैरो की फैकल्टीज थी। प्लस मेरा नीट पीजी में, इनिसेट में मेरा 1413 रैंक था और नीट पीजी में मेरे 160 करेक्ट थे और 600 मार्क्स थे, 600 मार्क्स थे और उसमें मेरा 3000 रैंक था, 3077। ठीक है, और तो ये कैसे हुआ? 115 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक से। अब मैं आपको वो रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे ग्रैंड टेस्ट मैंने पब्लिश कर दिए बुक आप लोगों के लिए, आप सैंपल पेजेस देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे की पॉइंट्स हैं, 50,000 की पॉइंट्स कवर्ड है मेरी बुक में।
आप जो है 20-25 दिन में आराम से इसको पढ़ सकते हैं, फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सैंपल पेजेस हैं ये। 4000 फ्लैश कार्ड है मेरे पूरे पैकेज में, और जो है 50,000 की पॉइंट्स को कवर करती हुई मेरी बुक है। जो भी एफएमजी का जून में एग्जाम हुआ था, 80% क्वेश्चंस मेरी बुक में से थे। आप मानोगे नहीं, जिसके पास भी मेरी बुक है जीटी रिव्यू बुक, उनको पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्टली उठ के। और लास्ट ईयर के जो नीट पीजी था उसमें भी 100 क्वेश्चंस मेरे पैकेज से डायरेक्टली थे नीट पीजी 2025 में। ठीक है, तो ये मस्ट रीड बुक है 115 जीटी रिव्यू बुक। और अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए, पैकेज का पीडीएफ चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।